मर के कोई ज्योति जोत नहीं समांदा, ये भी मैं अर्ज करते हैं। जो जींदियां जी जोत दे जोत नहीं होया, ज्योति जोत रली। जो जीवदियां जी संपूर्ण नहीं होया, मर के संपूर्ण नहीं होता। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਜੀਵਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਮਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧੂਰਾਪਣ ਅਖਰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਬੋਝ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਮਦੇ ਹੋਰ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਧੁਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਬੇ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं, ਅਨੰਤ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਬਲ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਸਵਾਦ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ ਹੁਕਮੇ ਬੂਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਭਰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਮਨੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ, ਬਿਕਮਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਧਾਰ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। 47 ਤੱਕ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਿਕਮਜੀਤ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਿਕਮਜੀਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 2,2500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो कम से कम भरतरी 5-4 साल छोटा होगा, और कितना होगा। 2000 साल इंज कह लो होया हो गए। पिछे काफी रौला पिया रहा। मैं इधर कैलीफोर्निया के इलाके देखा 2 साल पहले, आन 78 जान 97 और भी उठ सी मर्द का चेहरा। भाई 97 सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 95-96 कैलीफोर्निया के इलाके कनेडा च इस गल का बड़ा रोला मैं देख के हैरान होया।
मैनू मत्था मारना पिया हर जां ते। ये 97 जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है बिक्रमी संमत है, ईसवी संमत नहीं है। ईसवी संमत नहीं है, वो तो हो गया। उसका बिक्रमी संमत नाल ईसवी संमत नाल कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त हिंदुस्तान दे विच ईसा दा सन नहीं चलिया सी, बिक्रमाजीत दा चलदा सी। और सतगुरु अपने वक्त दा जिक्र करते हैं, शेर शाह सूरी दा, बाबर दा, उते हो गया। उसका तो इस नाल कोई मतलब नहीं। पर करीबन वैनकूवर दी संगतां, कैलीफोर्निया दी संगतां कहण दी संत जी गल थोड़ी कहंदे, संतां दी एक वीडियो टेप घर दे चल रही सी। गुणी ज्ञानियां नूं नहीं पता हुंदा। ते जद 97 भी लंघ गया, एक दो घरां ने ते कामकार भी छड़ दिता सी। कहंदे सब कुछ तबाही हो जाना, असीं हुण बैठ के बाकी जिंदगी भजन च करते, सब कुछ तो खत्म हो जाना है। एक दो ने नौकरियां भी छड़ियां सन, सब कुछ तो मिट जाना है 97। इत्थे तक वहम, भावें मैं खपदा रहे, बिकमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है। वो कहन जी नहीं ईसवी सम्मत है। मैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त चलिया ही नहीं सी, उत्थे ये है ही नहीं सी। पर हुण जद मैं वो नहीं सजना तो पूछया, तुसी भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है, आसमान भी मौजूद है। कहंदा नहीं जी, वो संतां ने अरदास की सी, तपस्या की सी, वह इस कारण करके घटना मुड़ गई है। लोग इस तरह बहाने लभ लैंदे ने। धार्मिक अनजाणपणे दी भी इंतहा है। भरतरी गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त मौजूद सी। गोरख तो इसने सिर्फ अपनी उम्र लंबी करने का ढंग ही सीख लिया सी। प्राणायाम की साधना, श्वासां नूं रोक लो, जीवन नूं खर्च नहीं करना, गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। और जद प्राणायाम की साधना दे च सफल होया, सालां बदी बैठा रहिंदा सी उस तरह ही साधना दे च। सियाणा सी, सूझवान सी, सोचिया क्या जीवन नूं लंबा करना ही जीवन का मनोरथ है? क्या जिंदगी नूं, जीवन नूं लंबा करना, बहुत जी लेना ही क्या जीवन का मनोरथ है? ये ख्याल, ये सवाल भरतरी दे दिल दिमाग दे उत्ते बोझ बन के रहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल गोष्ठी हुई है। फिर धन गुरु नानक ने 3 शब्द भरतरी दे प्रति उच्चारण किए ने आसा राग दे। सिर्फ टूक मात्र इन्हां 3 शब्दों दे पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। भरतरी उस वक्त काफी लंबी उम्र दा सी, गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त। सिफती रत्ता सद बैरागी, जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत धारे। दूसरा, जल ते उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर। मुखातब कर रहे हैं गुरु नानक, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकन। हैरानगी हुई, इको ही योगी दे प्रति, इको ही सिद्ध दे प्रति 3 शब्द। हालांकि सिद्ध गोश के चरपट नाथ नूं, लाहौरी पा नाथ नूं सतगुरु मुखातब करते हैं, पर भरतरी नूं इस ढंग नाल समझाया। भरतरी नाल गुरु नानक दी हमदर्दी। पता है क्यों? भरतरी ने अपनी कमजोरी कबूल कर ली गुरु नानक देव को। कह जीवन में अजाई गवाया, जीवन में सिर्फ जीवन लई गवाया है, जीवन परम जीवन की प्राप्ति लई नहीं।
यही जीवन जीण लई मैं जीवन गवाया है। और गजब की गल जो उसका ग्रंथ है वैराग शतक, उस इसका छंद भी मौजूद है, जिस कबूल करता है, भावें उम्र मेरी लंबी हो गई, मैं सिद्ध हो गया, प्राणायाम की साधना दे सफल हो गया, लेकिन जीवन ओही है, वासना ओही है, लोभ ओही है, कामना ओही है, मेरे जीवन दे कोई तब्दीली नहीं है, जीवन का ढंग ओही है। उसका सवैया मैं थोड़े सामने रखा। कहता है जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। जद मैं श्वासां नूं शरीर दे चलाना, प्राणायाम की साधना तो मुक्त होना, तो शरीर दे फिर भुख भी पैदा होती है, शरीर मंगदा, फिर प्राणा की हरकत नाल सब कुछ हरकत हो जाती है। फिर गोरख दे दसे हुए मत दे मुताबिक सानू भिक्षा मंगनी पैंदी है, ते भिक्षा मंग के लियाते हैं। जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार। लोके बचा कुचा मेरी झोली च पा देंदे ने, अपने घर का जो उन्होंने खुद नहीं खाना होता, वो मेरी झोली च पा देंदे ने। वो कुछ स्वादी नहीं आता, बरतरी कहते ने। जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। दिन रात दे 8 पैरां दे भाव 24 घंटिया च मैं खांदा भी एक टाइम आ, क्योंकि गोरख ने यही आख्या एक वक्त खाना है, रात को नहीं खाना। सारी रात बैठ के साधना करनी है, तो कहंदा खांदा भी मैं एक टाइम। जद भुख दा ताप मैनू जोर नाल तंग करता है, तो मैं घर घर दे चो भिक्षा मंग के लियाना और एक टाइम खाना। गोरख की दसी हुई साधना के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी इस तरह बतीत करदा। दूसरी पंक्ति च कहंदा है भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोख नो, न जो बनो सुपेद वार। जे नींद आउंदी है तो गोरख दे दसे मुताबिक भुंजे ते सो रहना, नंगी जमीन ते, न थले कुछ विछाण नूं, न उपर कुछ लैण। इस तरह मैं सोना। न साक सैन को गिना, गोरख ने कहा साक संबंधियां नूं कदी याद भी नहीं करना, अपने बच्चों नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं, भरा नूं, भैणा नूं भुल के कदी याद भी नहीं करना, अपनी चितनी दे च नहीं लियाना, अपनी सोच दे च नहीं लियाना, अपनी याद दे च नहीं लियाना साक संबंधियां। भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोख नो, न जो बनो सुपेदवार। ये सारी साधना करदियां मेरी जवानी डल गई, केस चिट्टे हो गए, भावें उम्र में लंबी कर ली, भावें प्राणायाम की साधना विच मैं सफल होया। तीसरी पंक्ति च कहंदा है खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार झों परी, अधैन ग्रंथ वार वार। गोरख ने कहा एक रंग का कपड़ा नहीं पहनना, तो तरह तरह के कपड़िया दियां टाकियां लैके, लीरां लैके मैं उसकी गोदड़ी बनाई है, पहनी हुई है। बरतरी राजा सी, बहुत वड्डा अपने समय का दानी सी। कहंदे लीरां कट्ठियां करके मंग मंग के उन्होंने अपने हथी सी के गोदड़ी बनाई है, वो पाई है। खीन चीर गोदरी,
अनेक लीर सौ करी, करी उजार झाऊं परी, अधैन ग्रंथ वार वार। बिल्कुल बियाबान जंगल दे अपनी झोगी बनाई है। गोरख ने कहा उत्थे रह जिथे मनुखा का लांगा ही ना होवे, कदी तेनू कोई मनुख दिखाई ना दे, किधरे फिर तेनू संसार याद ना आ जाए। मनुख नूं देख के किधरे मनुखा का सारा जगत तेनू चेते ना आ जाए, तेरा पिछोकड़ हंकार फुट ना पवे। तो कहता बिल्कुल बियाबान जंगल दे चुगी बनाई है। खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार झाऊं परी, अधैन ग्रंथ वार वार। पढ़े हुए ग्रंथां नूं मुड़ मुड़ के पढ़दा रहना, मुड़ मुड़ के मंत्रां नूं जपदा रहना, और मुड़ मुड़ के ग्रंथां नूं पढ़दा रहना। मंत्र जपदियां जपदियां थक जावां, ग्रंथ पढ़दा, ग्रंथां नूं पढ़दियां पढ़दियां थक जावां, मंत्र जपदा। इस तरह मैं अपना जीवन पास करदा। क्या इस नाल आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया? आखिरी पंक्ति च कहंदा है, हाय हाय भोग चहे, नाहे मौत अजे अजे, मोर चित बैल के सवार, बैल को सवार। योगियां दा इष्ट महादेव है, शिव जी है। भरतरी कहंदे ने साडा इष्ट बैल दी असवारी करदा है, बैल नूं काबू रख के चलदा है, पर मेरे मन रूपी बैल ने ते मैनू पछाड़ के परे मारिया है। वही लालसा है, वही वासना है जो मैं घर तो निकलिया सी सैकड़े साल पहले, वही तृष्णा है, वही कुछ है। सिर्फ एको ही गल है, उम्र लंबी हो गई है। श्वासां नूं रोक के अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली नहीं है, कोई पलटा नहीं है। यही कारण है दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां सिद्धां ते बड़ा तरस खादा सी। उचेचा सुमेर पर्बत ते गए। इन्हां जोगियां कोल जाण दा होर कोई मतलब नहीं सी, भी घर बार भी इन्हां ने छड्डिया, संसार भी छड्डिया, साधना भी की थी, ते जीवन दा मनोरथ की रखिया, उम्र लंबी कर लो बस, श्वासां नूं रोक लो, ये तो कुछ भी ना होया। इन्हां ही जोगियां दे इसे ही सिद्धांतिक नुकते नूं मुख रख के मेरे पातशाह ने पौड़ी उचारण की है, ते आप दी ज्ञात लई फिर अर्ज करा। जपजी साहब बहुता सिद्धां दे सामने उचारण होया, सिद्धां नूं समझाया गया, और ये गुरु नानक देव जी महाराज दे मूल वचन ने, अमृतमयी वचन ने, जिस विच जीवन दा, भगती दा, परमात्मा दा सारा सार तत्त आ जाता है। जपजी साहब की समझ पै गई तो सब कुछ की समझ पै गई, कुछ होर समझण की लोड़ भी नहीं, होर किसी को पुछण की लोड़ भी नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ते कहते ने, तिन को क्या उपदेश है जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है, उन्होंने होर उपदेश की लोड़ की है? कुछ छुपाया नहीं, गुरु नानक ने सब कुछ प्रगट करके रख दिता है, सब कुछ सामने रख दिता है। तो सतवीं पौड़ी दे मेरे पातशाह कहते हैं, जे जुग चारे आरजा। जे किधरे मनुख की उम्र 4 युगां वर्गी हो जाए। मैं शायद कल परसों थोड़े सामने विचारां रखियां सन भी धर्म ग्रंथां दे एक एक युग की उम्र लखां साल की लिखी हुई है। सिर्फ इस कलयुग की उम्र ही 84,000 साल, और किधरे किधरे इस तो भी ज्यादा। तो 4 युगां की तो फिर बहुत वड्डी बन जाती, क्योंकि कलयुग तो दुगनी तिगनी उम्र सतयुग की बनते हैं। फिर त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है, ये लखां साल की उम्र बनती है। साडे कोल जिहड़ा इतिहास मौजूद है धार्मिक भारत दे 5,000 साल तो पुराना नहीं है। वाल्मीकि रामायण
या वेद उपनिषदां, ये आदि ग्रंथ ने, इस तो पहले कोई लिखता नहीं सन। भोज पत्रां दे ते लिखियां होईयां ये लिखतां अज भी लखनऊ ते दिल्ली म्यूजियम विच मौजूद ने। भोज पत्र, भोज पत्र बद्रीनाथ दे इलाके च हुंदा एक दरख्त छोटा जिहा, उन्होंने चौड़े चौड़े पत्ते लगते हैं, उन्होंने तो ही कागज का काम लेंदे सन। और कागज नालों भोज पत्रां की उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हजारां साल दे पे ने, और अज भी हाथ नाल चुकीए ते अखर पढ़ सकते हैं, वो टुटते नहीं। जबकि कागज है करतारपुर साहब की भीड़ जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई सी ते भाई गुरदास जी ने लिखी सी, अजकल हुण उसका प्रकाश नहीं करते। पहले करते होंगे सन संगरांद वाले दिन, पूर्णमाशी वाले दिन, हुण नहीं करते। पत्रे जड़ते हैं, इतनी बिरद हो गई है, पत्रे जड़ते हैं। इंज प्रकाश करिए तो पत्रे बुरदे हैं। उम्र हो गई, काफी समा हो गया, पौने 500 साल का समा बहुत ज्यादा होता है। और कागज पुराना हो गया है, बिरद हो गया है, पत्रे झड़ते हैं। और ये झोला है, झोला पुराना हो सकता है, हो गया है। अखरां दे जिहड़ा ज्ञान है वो कदी पुराना नहीं आता, नित नवा आता है। ये पत्रे सतगुरु दा झोला ने, इस तरह जिवें रुमाले, इस तरह जिवें पालकी दा बनाना। पुरानी हो सकती है पालकी, पुराने हो सकते हैं रुमाले, पुराने हो सकते हैं पत्रे। वो अखर जिन्हां दे च रब्बी ज्ञान है, सारा संसार पुराना हो सकता है, वो तो नित नवा है। वो ज्ञान नित नवा है, वही शब्द गुरु है। उसे ने गुरु ज्योति आख्या गया। वो ज्योति कदी पुरानी नहीं होती। तो मैं अर्ज करा, 5000 साल तो पुराना इतिहास नहीं है, ते 5000 साल दे घट तो घट 3 युगां दे ते अवतार विच ही आ जाते हैं, राम, श्री कृष्ण ते गुरु नानक। इन्ना ही 5000 साल च आ जाते हैं। ये मेरी विचार कईयां नाल होई, जदों कहंदे ने 2 लाख साल की उम्र त्रेते की, 1,60,000 साल की उम्र द्वापर की, 84,000 साल की उम्र कलयुग की। तो मैं कहा तुसीं एक पासे कहंदे हो 3,500 साल होए ने श्री कृष्ण नूं होया, ते राजे जनमेजे दे नाल कलयुग शुरू हो गया। यानी कोई 2000 तो उच्चा, यानी 2600 साल पहले राजा जनमेजा सी। महात्मा बुद्ध तो 100-150 साल पहले राजा जनमेजा है सी। उस नाल कलयुग शुरू होया। और कृष्ण नूं होए 3,500 साल, ते 5,000 साल हो गए श्री राम नूं। ये तो फिर पीरियड कोई बहुत लंबा तो नहीं बनता। कृष्ण ते राम दे विचकार कोई बहुत वड्डा गैप तो नहीं है, ये थोड़ा है। ते राम ते गुरु नानक देव जी महाराज दे विचकार कोई लाखां साल का गैप तो नहीं है। ये तो 5000 साल च 3 युग लंघ गए। चलो लाखां साल की भी मन लीए। महाराज कहते ने, ऐ सिद्धो जे जुग चारे आर जा। उम्र कोई इतनी लंबी कर ले 4 युगां वर्गी, और मनुख की यही लालसा, किसी कीमत ते नहीं मरना चाहता। रोगी है, बीमार है, रोम रोम पीड़ा दे है, जीवन बोझ है, तां भी जीवना चाहता है। हर हालत विच मनुख जीवना चाहता है। जीवन की यह प्रबल लालसा, इस गल का सबूत है परम जीवन नहीं मिले। इस जीवन तो कोई उच्ची चीज नहीं मिली, उच्ची जिंदगी नहीं मिली। और जितने चिर तक वो परम जीवन नहीं मिलेगा, इस जीवन की लालसा बनी रहेगी, बनी रहेगी। और जब कोई खिड़े मथे मौत तस्लीम करे, तो फिर समझ लेना इसनों परम जीवन मिल गया है। जैसे कि कबीर कहते हैं, जिस मरने ते
जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद।